let's add the knowledge to our plus pages from today's Utthan session. It said that more the knowledge, lesser the ego. Lesser the knowledge, more is the ego. And to learn many things with the added advantage in our lifestyle, let's start the session from today's, which is the new series Overcoming Ego. I would like to welcome our speaker by a digital bouquet. Can we have digital bouquet, please? स्वागतं 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 स्वागतम् आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम धन्य हो गए हम Nathanji, this is Deepika Jindal here. Can you hear me? Yes, Thank you yes, so yes, much. yes. Thank you so much for joining today's session, Overcoming Ego. I think it's a the most important point in a human life is our ego, and we don't understand how sukshma this is, because if you really start looking at yourself, everything actually emerges from our ego. And I think I'm looking forward to hearing what you have to share on how we can actually observe this ego of ours and prevent it from becoming a deterrent in our lives, because this is the most crucial thing of understanding what ego really means and how do we observe and sort of disconnect from that. So Om Shanti, and I'm really happy today to have you, and I won't take more time because as it is we are running a bit late because of this technical snag. So let's begin. Thank you so much. Om Shanti. Thank you, ma'am, for your valuable thoughts on the new series. Now I request all your attention to the promo video of your new series. Can we please have the promo video? Jindal Stainless and JSL Limited welcomes all to the Utthan Wellness series. योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। किसी से अपने आप को ऊंचा फील करना या किसी से अपने आप को नीचा फील करना, ये भी ईगो है. ईगो मीन्स अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई ओन सेल्फ. एंड व्हेन आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, तो हम हमेशा कैसे होंगे? हम हमेशा कैसे होंगे? इक्वल, इक्वल एंड ईगोलेस. पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो. इक्वल एंड ईगोलेस. कभी देखो, अगर दो लोग बिना ईगो से एक दूसरे को मिलेंगे, एनर्जी कौन सी होगी? एक बच्चे को देखो, एक बच्चा हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है कि नहीं आता? इवन इफ यू वॉकिंग ऑन द रोड इन द मार्केट, किसी और का बच्चा है, उसकी गोदी में है, लेकिन उसको देख के हम मुस्कुराने लग जाते हैं. So, this August 2022, Utthan Wellness presents a series on overcoming ego. Thank you. Dear all, today we have Professor Swaminathan for the opening series and today's session. A very dynamic trainer, counselor, and consultant with a clear focus on delivering value to the industry. Trainer who combines wisdom and insight from the frontiers of science. He's a corporate trainer integrating science with spirituality.
He has also appeared on numerous television talk shows. He is associated with the Brahma Kumaris World Spiritual University for more than 15 years. And he has also conducted many seminars and programs as social service at various schools, colleges, Rotary Club, hospitals all over India. We welcome you, sir, and request you to take over the session. Om Shanti. Good morning, Namaskar, and Jai Hind. Is my voice audible? आपको सुनाई दे रहा है आवाज? Okay. Absolutely, sir. Most respected Honorable Deepika Behenji and my wonderful sweet friends of Jindal Steels, please accept lots of greetings of peace, love and happiness from Swami Bhai. वैसे thanks for this sweet introduction and welcome, madam. This month is August और अगस्त महीने में हमको अपनी देश की स्वतंत्रता और विशेष तौर पर ये जो वर्ष है हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. Maybe your topic is so beautiful and apt. Maybe we should all work upon getting freedom from this, a kind of a thing that all of us. I was very happy to listen to Deepika Benji when she was speaking about it. So subtle. इतना सूक्ष्म ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता है. Right? Sister Shivani बहन ने भी बहुत प्यार से एक अच्छा introduction हम सबको दिया. My dear friends, I will just share some of my experiences being with the Brahma Kumaris Vidyalaya for some years. तो मैं आपको बहुत प्यार से अपने कुछ एक अनुभवों को शेयर करूंगा और मैं अपने जिंदाल के सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले मे बी 25 to 35 मिनट्स में आपसे बात करूंगा. इस आधे घंटे में राइट आपको मैं एक थोड़ा सा सेवा देता हूँ. सभी करेंगे सेवा? कैन आई हियर सम यस फ्रॉम योर चैट? थोड़ा सा मैं सेवा देता हूँ बहुत प्यार से. ओके थैंक्स राधा कांता जी, थैंक्स तनुजा दी. ओ ब्यूटीफुल. सेवा तो करना है ना क्योंकि ये अगस्त महीना है. तो मैं आपको थोड़ा सा सेवा देता हूँ. काम तो नहीं दूंगा, सेवा दूंगा कि अगले आधे घंटे में जब स्वामी भाई आपसे बात करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि स्वामी भाई जो अपना इंटरेक्शन कर रहे थे तो स्वामी भाई में कहाँ कहाँ ईगो झलक रहा था. करेक्ट? क्योंकि कभी कभी ऐसे ही होता है. तो फैकल्टी वाज स्पीकिंग अबाउट ओवरकमिंग ईगो. तो कभी कभी सेशन खत्म होने के बाद लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार सबसे ज्यादा तो ईगो तो इन पर ही नजर आया. तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है. मैं अपने पर विशेष ध्यान जरूर दूंगा, लेकिन जैसे बताया गया था इट इज सो सटल कि हमें नजर नहीं आता है. हाँ, सामने वाले व्यक्ति को जरूर पता चल जाता है कि इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा या बहुत कम ईगो है. सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल डू दिस ब्यूटीफुल सर्विस एंड हेल्प मी. और अंत में मैं आपका अपना ईमेल आईडी देता हूँ. मेरे ख्याल से पब्लिक में कभी कभी बोलना अच्छा भी नहीं लगता होगा शायद आपको, तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी देता हूँ. एज अ गुड फ्रेंड आप मुझे मेल में लिखकर बता सकते हैं कि व्हेन यू आर मेकिंग दैट स्टेटमेंट वाज इट रिफ्लेक्टिंग योर ईगो और वाज इट हाउ वाज योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. सो इट विल हेल्प मी टू चेक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द कोऑर्डिनेटर मैडम जो थी वो बहुत अच्छे डेफिनेशन बता रहे थे. Ego, she was telling, and that's a very beautiful statement by one of the most intelligent persons, Sir Albert Einstein ने ये dialogue कहा था. The more the knowledge, the less the ego, right? The more the knowledge, the less is the ego. हमको जितना ज्ञान होता है उतना हमारा जो ईगो है कम होना चाहिए. और आइंस्टीन के साथ एक और वैज्ञानिक जिनको हम और आप बहुत पसंद करते हैं इस डॉक्टर कलाम सर. तो डॉक्टर कलाम सर के लिए अक्सर करके ये कहा जाता है ही हैड मोर देन 30 PhD डिग्रीज टू हिज क्रेडिट. उनको इतने सारे खुद में वो डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन इतना ऑनरी डॉक्टरेट डिग्रीज मिला कि शायद उनको कभी कोई गिनती याद नहीं होगी. तो अगर मे बी मोर देन 35 ऑनरी डॉक्टरेट डिग्रीज, तो अगर हमें डॉक्टर कलाम को एड्रेस करना होगा तो कैसे एड्रेस करना होगा? डॉक्टर 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 30 बार बोलना पड़ेगा. बट वी ऑल फाउंड हिम, ही वाज सो सिंपल, सो हम्बल, so polite, and that was his human connection. लोगों को है ना, चाहे छोटे बच्चे हैं या हम और आप बड़े हैं, हमको डॉक्टर कलाम को देखकर इतना पसंद आते थे, इतना अच्छा फीलिंग आता था, क्योंकि हमको मालूम था वो बहुत बड़े पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं. More the knowledge, the less is the ego, right? एक तो नॉलेज होता है हमने कितनी लौकिक में पढ़ाई पढ़ी है, इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, MBA किया है, PhD की है. लेकिन पिछले एक साल से, और संगीता बहन से आज मेरा सुबह बात हो रहा था, आई वाज इंटरेक्टिंग विद हर टुडे मॉर्निंग एंड आई वाज सो हैप्पी टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन कनेक्टेड विद दिस
this is your second series, so I would love to appreciate and compliment all of you for this. And this is your new series that has started. 1 साल से आप जुड़े रहे, मतलब बहुत प्यार से आप ये यात्रा बहुत वंडरफुल तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ पे जो नॉलेज जो आपको दिया जा रहा है, इज नॉट नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल थिंग, बट इट इज नॉलेज ऑल अबाउट द सेल्फ। इनफैक्ट कभी कभी हम लोगों को इतना है ना, पढ़े लिखे होते हैं तो हमको शायद वैज्ञानिक हो, इंजीनियर्स हो, हमको इतना ईगो आ जाता है कि हमको लगता है वी आर एबल टू कंट्रोल नेचर। लेकिन वो छोटे से प्यारे से वायरस, कोरोना वायरस आया, मेरे ख्याल से तब से आप और हम जुड़े थे। एंड दिस इज माय सेकंड इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जब कोरोना वायरस आया है ना, तब हमको लगा स्मॉल कोरोना वायरस ने हमें एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन पर लेकर आए, है ना, when we speak about knowledge. And what is the transition? The transition of, right, how are you to who are you. कोरोना वायरस के पहले जब हम एक दूसरे से मिलते थे तो बड़े प्यार से पूछते थे हाउ आर यू, भाई आप कैसे हो। लेकिन जब से वायरस आया था तो हम लोग मास्क पहनने लगे, तो हम लोग हाउ आर यू नहीं पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं हु आर यू, आप हो कौन। एंड दिस ट्रांजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द नॉलेज, a shift of consciousness from how are you to who are you. I will share an experience with all of you. Some years before I was invited by Indian Oil, Mathura Refineries. और आपको सबको पता होगा मथुरा रिफाइनरीज इज वन ऑफ द महारत्ना कंपनीज ऑफ भारत। तो जब हम वहां पर गए तो जो एचआर के जो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से स्वागत किया और कहा स्वामी भाई आपका बहुत स्वागत है, यू हैव कम टू मथुरा रिफाइनरीज फॉर ट्रेनिंग। आई सेड यस। तो बोला आपका कल का 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो मैंने कहा ओके। तो भाई हु इज माय टारगेट ऑडियंस, किससे मुझे इंटरेक्ट करना है। तो उन्होंने कहा स्वामी भाई मथुरा रिफाइनरीज में देयर इज अ होल लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट गो साइमल्टेनियसली, राइट। अभी नए जीईटीस आए हैं तो उनका ट्रेनिंग चल रहा है, फिर इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, एचओडीज, बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, राइट। बट देन आप तो इन सब के लिए भी कभी भी जा सकते हैं, बट वी आर आस्किंग यू टू डू कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अ वेरी सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। तो मैंने कहा ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा we want you to conduct a session with all those people who are going to get retired in the next 6 months to 1 year. अच्छा, ऐसा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। बोला हाँ, हमारे यहाँ जो लोग रिटायर होते हैं ना उनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो what is the topic that Swami Bhai has to speak? बोला वही shift of consciousness from how are you to who are you. मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ये कितना दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बोला सर 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट। आज का दिन हो गया है, कल आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो मैंने कहा आज क्या कवर हुआ। बोला आज यही कवर हुआ हाउ आर यू को कैसे मेंटेन करना है। तो उसमें आज 3 फैकल्टी मेंबर्स आए थे। टुमारो यू आर द फैकल्टी मेंबर फॉर हु आर यू। तो मैंने कहा अच्छा हाउ आर यू में क्या कवर किया गया। तो बोला सर आज सुबह ना एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर सभी जो लोग रिटायर होने वाले और वो थे, और उनके ना वाइफ भी थे। If the husband is working in Mathura refineries, the wife has to come. If the wife is working in Mathura, the husband has to come. So there was a select group of around 80 to 100 लोग थे, very beautiful audience थे। तो उन्होंने कहा कि आज जो कवर हुआ है, एक डॉक्टर आए और सुबह सुबह सबको बताए कि भाई रिटायरमेंट के बाद हाउ आर यू अगर कोई पूछेगा तो आपको हेल्दी दिखना चाहिए। तो मैंने कहा यार दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू मेंटेन आवर हेल्थ इवन आफ्टर रिटायरमेंट बिकॉज हमारा एज प्रोग्रेस हो रहा है। तो मैंने कहा दूसरा फैकल्टी कौन थे। तो बोला the second faculty for today was there was a accounts manager who came. मैंने कहा उन्होंने क्या सिखाया। बोला उन्होंने सबको यह सिखाया कि भाई रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पेंशन मिलता है, कितना ग्रेच्युटी मिलता है, कितना पीएफ मिलता है, तो उन सभी पैसे का आप कैसे ध्यान रखेंगे। मैं कहा हाँ ये भी बहुत जरूरी है भाई, है ना, इन्वेस्ट कैसे करना है। मैंने कहा फिर तीसरे फैकल्टी कौन थे। बोला सर अभी शाम को एक फैकल्टी आया था, उनका सेशन हो गया है। मैंने कहा तीसरे फैकल्टी कौन थे। बोला सर वो एक एडवोकेट कम लॉयर थे। डॉक्टर समझ में आया, अकाउंट्स मैनेजर समझ में आया, ये एडवोकेट कम लॉयर को क्यों बुलाया आपने। बोला सर आज शाम को ना वो सबको ये ट्रेनिंग दे रहे थे कि आप अपना वसीयत कैसे लिखते हैं, हाउ डू यू राइट योर विल पेपर। ही वाज गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेनिंग, क्योंकि बीच में तो आप तो टक हो जाओगे, फिर आपके बच्चे फिर आपस में डिशुम डिशुम ना करें, तो उसके लिए वो विल पेपर कैसे लिखते वो बता रहे थे। मैं कहा वाह आपकी तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, कितना सोच समझ कर आपने ट्रेनिंग रखा हुआ है। ओके सो नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू टुमारो। बोला बस हाउ आर यू तो हो गया है,
अब आपका सिलेबस है हु आर यू पूछना। मैं कहा ठीक है दैट इज आई एम लिटिल कंफर्टेबल। अब दूसरा दिन जब मैं सुबह पहुंचा तो द ग्रुप वाज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो जो जनरल मैनेजर एचआर थे बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया, इंट्रोड्यूस किया, बोला स्वामी भाई का टॉपिक कल हाउ आर यू हो गया है, नाउ टुडे ही इज गोइंग टू इंटरेक्ट ऑन हु आर यू। तो मैंने कहा ओके सिंस दिस इज माय टॉपिक विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट्स रिगार्ड्स आदर सम्मान, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ हु आर यू, भाई आप हो कौन। अब कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तो मैंने बहुत प्यार से पूछा भाई बताओ ना, बिकॉज दिस इज माय टॉपिक सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन विद लॉट्स ऑफ लव आई एम आस्किंग हु आर यू। तो कोई जवाब नहीं दे रहा, सभी सीरियसली एकदम गंभीर होकर बैठे थे। और क्योंकि वो जनरल मैनेजर एचआर भी बैठे थे एंड ही वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, ही टोल्ड मी कि मैं भी रिटायर हो रहा हूं तो आई एम आल्सो पार्टिसिपेंट, ही वाज कोऑर्डिनेटर आल्सो एंड पार्टिसिपेंट। मैंने कहा सर आप खड़े हो जाइए, तो खड़े हो गए। तो मैंने बड़े प्यार से पूछा सर कोई जवाब नहीं दे रहा है तो यू आर माय गुड फ्रेंड, अब आप बताइए सर हु आर यू। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा स्वामी भाई आई एम द जनरल मैनेजर एचआर। मैं कहा नहीं सर वो आपका पोस्ट है, आप कौन हो। आई एम द जनरल मैनेजर एचआर। मैं कहा नहीं सर वो आपका डेजिग्नेशन है, आप कौन हो, हु आर यू। बोला आई एम द जनरल मैनेजर एचआर, कुर्सी नहीं छोड़ रहे अपनी। फिर मैंने कहा सर कब रिटायर होने वाले हो। बोला 4-5 महीने के बाद रिटायर हो रहा हूँ। मैं कहा सर रिटायर होने के बाद आप क्या बनेंगे। तो उन्होंने सोच कर कहा रिटायर्ड जनरल मैनेजर एचआर। मैं कहा दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम लोग का जो पोस्ट, हमारा पोजीशन, हमारा डेजिग्नेशन, हमारा कास्ट, हमारा क्रीड, हमारा जेंडर इज नॉट हु आर यू। और ये जो हम इतना मास्क पहन लेते हैं ना कि हम अपने ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। और मुझे याद आता है मथुरा रिफाइनरीज, मैंने एक बहुत प्यारा संदर्भ सुनाया, राइट, आई वुड लव टू शेयर इट विद माय स्वीट फैमिली ऑफ जिंदाल आल्सो, कि एक बार एक रिटायर्ड बैंक का जनरल मैनेजर रिटायरमेंट के कुछ दिनों के बाद वो अपने बैंक में गए। तो बैंक में बहुत लंबी लाइन थी, तो ये जनरल मैनेजर उस लाइन में खड़े हो गए और धीरे 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 ये वो जो है ना लाइन आगे बढ़ रही थी। अच्छा जो काउंटर पर जो ऑफिसर बैठा था ही वाज न्यूली पोस्टेड टू दैट ब्रांच, तो उन्होंने इस पूर्व जनरल मैनेजर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। लेकिन उस ब्रांच में से बहुत सारे लोग थे जो ना वो जानते थे, तो जैसे ही देखा कि हमारे पूर्व जीएम साहब लाइन पे खड़े हैं तो उनको बहुत प्यार से बोला सर सर आप लाइन में क्यों खड़े हो सर, आप आइए अंदर आइए। तो बहुत प्यार से वो पूर्व जीएम को बुलाया और बहुत प्यार से उन्होंने उनको बिठाया। They offered him a glass of water, they gave him a tea to drink, और उन्होंने कहा सर इसी ब्रांच से आप रिटायर हुए सर, ये आपका अधिकार होता है कि आप इस ब्रांच में डायरेक्टली आ सकते थे ना, राइट। तो बोला नहीं 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 मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, राइट। जैसे ही वो बोला तो जो काउंटर का ऑफिसर जब उनको पता चला कि ये पूर्व जीएम साहब हैं तो वो भी आए। बोला सर आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई एम न्यूली पोस्टेड टू दिस ब्रांच, आई एम सॉरी सर आई कुड नॉट आइडेंटिफाई यू, लेकिन आप अपना आइडेंटिटी रिवील तो कर सकते थे ना। तो पूर्व जीएम उस यंग ऑफिसर को देखकर कहता नो नो माय डियर बॉय आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। तो सबने पूछा सर आप किस बात की तैयारी कर रहे हैं। बोला देखो आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये लोग भी तो रिटायर हो जाएंगे ना, फिर तो मुझे लाइन पर ही खड़ी होनी पड़ेगी ना। सो आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ, ही सेड। एंड देन ही टोल्ड टू दैट यंग ऑफिसर, बोला मैं बहुत वर्ष माय डियर बॉय मैंने इस बैंक में काम किया है, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, मैंने तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद कराए हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट ओके मैंने एक चीज जो सीखी विच आई वुड लव टू शेयर विथ यू माय डियर यंग फ्रेंड। तो उस यंग ऑफिसर ने कहा सर व्हाट इज योर वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर मी। तो ये रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने उसको कहा इन अ गेम ऑफ चेस, शतरंज के गेम में ना राजा और प्यादा का अपना एक जगह होता है, लेकिन जब गेम खत्म हो जाता है ना राजा और प्यादा एक साथ डिब्बे के अंदर, एक साथ डिब्बे के अंदर। That's what is very very important my dear friends. So it is a shift of consciousness from how are you to who are you. I'll ask you a very simple humble question, just सोचना और इस पर चिंतन करना, right? Just imagine करिए एक दिन आप ऑफिस में आते हो और जैसे आप अपने कार से उतरकर जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो अपने ऑफिस का, so there is a watchman there, okay? तो आपका वॉचमैन के साथ एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, यू इंटरेक्ट विद द वॉचमैन इन वन वे, राइट। फिर आप अपने
ऑफिस डेस्क में जाते हो या अपने ऑफिस एरिया में आते हो तो यू इंटरेक्ट विथ योर कलीग्स, वहां पर आपका एक इंटरेक्शन होता है। फिर कुछ समय के बाद आपको मैसेज मिलता है कि योर सुपीरियर और योर बॉस वांट्स यू इन द कैबिन, तो फिर आप अपने सीनियर के कैबिन में जाते हो, वहां पर आपका इंटरेक्शन होता है। माय सिंपल हम्बल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, इस पर चिंतन करना, पहले आपने वॉचमैन के साथ इंटरेक्शन किया, राइट, जैसे भी किया, आपने अपने कलीग से किया, जैसे भी किया, फिर आप अपने सुपीरियर के पास गए, उनसे इंटरेक्शन किया। अब मैं बताइए दोस्तों, आप चैट में लिख के बता सकते हैं, इन तीनों जो इंटरेक्शन है, विल इट बी द सेम इंटरेक्शन दैट यू आर डूइंग और विल इट बी डिफरेंट इंटरेक्शन, राइट? विल इट बी सेम और डिफरेंट? सेम या डिफरेंट करके आप जरा चैट में लिखेंगे प्लीज। तीनों से आप इंटरेक्शन, अच्छा, इट विल बी द सेम, इट विल बी डिफरेंट, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं इट इज सेम, नॉट सेम, इट विल बी डिफरेंट, ओके ओके, यस, मे बी बोथ ऑफ यू आर इन योर आर राइट इन योर राइट वे, maybe it's possible that I have not put up the question correctly also, ये भी possible हो सकता है। somebody is very हमारे शाहिद भाई कहते हैं 100% different, okay। now the question is, ये तीनों का जो इंटरेक्शन में, फिर शाहिद भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इट्स योर चॉइस अगर आपको जवाब देना है या नहीं देना है, सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, इन तीनों इंटरेक्शन में फिर आपका ओरिजिनल इंटरेक्शन कौन सा है? तीनों में से आपने इंटरेक्ट किया तो आपका ओरिजिनल इंटरेक्शन कौन सा है? Which is your original interaction? All. Okay, none. Beautiful. I'm sorry if I've confused you a little bit. Okay, none. देखिए क्या होता है, मे बी जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप वॉचमैन के पास गए, आपका इंटरेक्शन हुआ, जो इंटरेक्शन हुआ वो क्या होगा? जो इंटरेक्शन की जो बात कर रहे हैं ना, what we are speaking about, maybe you're trying to, okay, यस, तो जो मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, मे बी यू आर मिक्सिंग इट अप विद अ प्रोटोकॉल से शायद मिक्सअप कर रहे हो। जब आप सीढ़ी चढ़कर जाते हो और आपका वॉचमैन जय हिंद साहब, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर बोलते हो, तो उसने बोला है ना, आपने गुड मॉर्निंग बोला या नहीं बोला, बट दैट इज द इंटरेक्शन। जब आप अपने कलीग्स के साथ जाते हो तो यू इंटरेक्ट विथ योर कलीग्स, हेलो कैसे हो, क्या हो, देयर इज सम प्रोटोकॉल। जब आप अपने सुपीरियर के कैबिन में जाते हो तो बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग सर आप बोलते हो। These are protocols and this is a protocol which we should manage. इस हिसाब से जो आप कह रहे हो तो डिफरेंट है, बट what सिस्टर शिवानी was speaking about is, तीनों में जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो प्रोटोकॉल्स आर डिफरेंट। तो जिन्होंने डिफरेंट लिखा है शायद उस हिसाब से शाहिद भाई ने भी लिखा 100% डिफरेंट, इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन व्हाट शिवानी बहन कह रहे थे कि तीनों में जब आपका इंटरेक्शन हो रहा था, What was your flow of energy? आपकी ऊर्जा का प्रवाह, was it the same or was it the different? जब आप सीढ़ी चढ़ रहे थे तो अगर हमारे मन में कॉन्शियसनेस आया कि मैं बॉस हूं, ये वॉचमैन है, then that is what we have to check. वहां पर हमें चेक करना चाहिए, राइट? जब मैं अपने कलीग से मिलता हूं तो फाइन, जब मैं अपने बॉस से मिलता हूं तो मैं, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं तो मुझे रिस्पेक्ट दिखाना पड़ रहा है। जबकि तीनों के साथ हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी शुड बी पीस, लव, हैप्पीनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिगार्ड। भले ही इज प्लेइंग अ रोल ऑफ वॉचमैन or whether somebody is playing the role of a colleague or a superior, and this is what overcoming ego is all about. A shift from role consciousness to real consciousness. रोल कॉन्शियसनेस टू रियल कॉन्शियसनेस, ये शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, करेक्ट? एक बार जब रोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ना, तो एक बार मैंने छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताइए, आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है, जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है? तो सबने अलग अलग हीरो का नाम बताया। फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताइए आपको है ना सबसे अच्छा विलन कौन लगता है? जैसे ही मैंने पूछा तो मैंने देखा पीछे से एक लड़के ने अपने दोस्त से कुछ बोला, दोनों बहुत जोर से हंसने लगे। तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने कहा भाई हंस क्यों रहे, बताओ कौन सा विलन अच्छा लगा? तो छोटू ने कहा नहीं सर मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैंने कहा नहीं बोलो ना, विलन कौन सा अच्छा लगा? नो सर इट्स ओके सर। तो फिर मैं उसके नजदीक गया, मैंने कहा बताओ ना किस विलन का नाम लिया आपने? बोला नो सर प्लीज सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मैंने कहा इसमें सॉरी की क्या बात है, क्या आप बताइए कौन सा विलन आपको अच्छा लगता है?
sir, please, sir, I'm very sorry, sir, I apologize, sir. Now suddenly it caught my attention, इसमें sorry और apologize ये लड़का क्यों बोल रहा है? मैं कहा आप बैठ जाओ, जो साइड में जो बच्चा बैठा था ना, मैंने उसको खड़ा किया. मैं कहा अच्छा आप बताइए इसने क्या जवाब दिया? बोला सर, जब आपने पूछा ना सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है, तो इसने कहा, सबने कहा और इसने भी कहा था सर आमिर खान इनको बहुत अच्छा लगता है. मैंने कहा ओके. बोला सर, जब आपने विलन पूछा ना, तो पता है इसने क्या कहा? मैंने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूँ. बोला सर, इसने कहा विलन कौन? पापा. The moment he told this, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं सामने आया. फिर मैंने कहा अच्छा आपने कितना, सभी ने, अच्छा आमिर खान को हम देख लेते हैं, आप में से कितने लोगों ने आमिर खान का मूवीज देखा? तो सबने हाथ उठाया. मैंने कहा कौन कौन सा मूवीज देखा बताओ. सर तारे जमीन पर देखा है, 3 इडियट्स देखा है, फिर दंगल देखा है, राइट, अलग अलग नाम बताने लगे. तो मैंने कहा ओके, कितना मूवीज टोटल गिन करना? एवरीबडी वेर एबल टू टैक 10 मूवीज. 10 मूवीज. अब सोचने की बात है कि बच्चों ने आमिर खान से आज तक नहीं मिले. 10 घंटे में 10 घंटा उनको स्क्रीन पर देखा. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 10 into 3 30 आवर्स. 30 घंटा उन्होंने आमिर खान को अपने जीवन में देखा, इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 8 years, 10 years और 12 years. एंड आमिर खान बिकम्स द हीरो. एंड पापा हर पल हर क्षण आपके हर संकल्प अपने बच्चों के प्रति, और पापा बिकम्स द विलन. राइट, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम सॉरी फॉर इट, लेकिन बच्चे ने जब बोला तो मैं उसी रमणीकता से, विलन नंबर 1 उस बच्चे के हिसाब से इस पापा, विलन नंबर 2 एनी गेस, विलन नंबर 2 बच्चों के हिसाब से पापा 1. अरे वाह नहीं शाहिद भाई, आप डबल प्रमोशन कर रहे हो. विलन नंबर 1 एज पर बच्चे इज पापा, विलन नंबर 2 इज मम्मा, एंड थर्ड शाहिद भाई, विलन नंबर 3 इज पीपल लाइक अस, टीचर्स. और उस दिन मैंने महसूस किया, I don't want to become such a kind of a villain. मुझे विलन क्यों बोलते भाई? और उस दिन मुझे समझ में एक बात आई कि हम और आप रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी नहीं कर रहे. जब 3 इडियट्स में रैंचो अपने दोस्तों को कहता है, फरहान और राजू को, कि आपको स्वतंत्र हैं, आपको जो करियर चॉइस लगता है, अगर आपको साउथ अफ्रीका में जाना तो जाइए ना, वो उनको स्वतंत्र करता है, बट विथ लॉट्स ऑफ लव. राइट, ये स्वतंत्रता शायद हम नहीं दे पाते. तारे जमीन पर वो निकम सर, वो ईशान, डिफरेंटली और स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को वो जो है जैसा है उसको वो एक्सेप्ट करते हुए उसको एम्पावर करता है. शायद स्वामीनाथन ऐसे टीचर ने कभी नहीं किया. एंड दिस वाज अ ग्रेट रियलाइजेशन फॉर मी. और उस दूसरा दिन जब मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के पास गया, तो मेरी जो दृष्टि जो थी, बस रोल तो प्ले कर ही रहा हूं मैं एज अ टीचर, बट मैंने कहा आई वुड लव टू बिकम अ गुड टीचर, अ ब्यूटीफुल टीचर लाइक निकुम सर, और अ रियल टीचर लाइक डॉक्टर कलाम सर. यस, ह्यूमिलिटी, लव, पीस, जॉय, दिस इज व्हाट इज अ रियलिटी. हम बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों दिन में. यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ वाइफ, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ सिस्टर, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ डॉटर. रोल तो प्ले कर रहे हो, लेकिन इस सभी रोल में जो रियलिटी हमारी है वो आत्मा की, पीस, लव, जॉय, हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. संगीता बहन ने कहा थोड़ा सा होमवर्क दे देना. जैसे होमवर्क बोलते ना, तो मेरा भी वो रोल कॉन्शियसनेस जागृत होने लगता है. तो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, है ना. कैसे पता चलता है हमको ईगो है या नहीं? जब हम अपने कोई ओपिनियन बताते हैं ना, सामने वाला व्यक्ति जब सुनता नहीं है ना, तो मुझे लगता है आई फील हर्ट, आई फील इरिटेटेड एंड आई फील एंग्री. हर्ट, बहुत हर्ट होता है. ये मैं बोल रहा हूं तो ये सुनता क्यों नहीं है ना. हर्ट, धीरे से इरिटेशन, और क्लियर कट चेहरे पे दिखता है, इट इज एंगर. ओके, तो मैं आज, बिकॉज इट्स 2 अगस्त टुडे, ब्यूटीफुल डे, स्वतंत्रता दिवस के नजदीक पहुंच रहे हैं, आज से लेकर 15 अगस्त तक, राइट, मैं बहुत आपके साथ मैं भी ये होमवर्क करूंगा कि इस 15 डेज में हम लोग इस बात को चेक करेंगे, और खास कर चैरिटी बिगिंस एट होम. घर पर बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे. लेट्स नॉट गेट एंग्री ऑन चिल्ड्रन. लेट्स बिगिन एट घर से शुरू करते हैं. ऑफिस में फिर हम लोग बाद में देखेंगे.
घर में। तो आप में से कितने लोग हैं जो आज से लेकर 15 अगस्त तक, राइट, और मे बी नेक्स्ट वीक तक, आपको एटलीस्ट 1 वीक, राइट, देन वी विल स्ट्रेच अप टू 15th अगस्त, जो अपने बच्चों पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर बिल्कुल इरिटेट नहीं होंगे? वो जरा चैट में यस लिखकर बताएं। कैन यू पुट अ यस ऑन द चैट? वाओ, वाओ, थैंक यू, विल ट्राई वेरी ऑनेस्टली, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्ट कन्फेशन। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताकर, एक छोटा सा गीत बजाकर मैं वाइंड अप करूंगा, बिकॉज आई विल टेक केयर ऑफ योर टाइम ऑल्सो, क्योंकि आपको अपना रोल्स भी प्ले करना, अलग अलग रोल प्ले करना है जिंदाल में। मुझे याद आता है लास्ट टू लास्ट वीक आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द CISF। बहुत सारे हम लोग फोर्सेस को, हमारे कैंपेन चल रहा था एज पार्ट ऑफ द आजादी अमृत महोत्सव। और मुझे कभी कभी लगता है आप और हम सिविलियंस जो है ना, वी आर ईगो से थोड़ा बच जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिफेंस फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, वो इतना यूनिफॉर्म पहनते रहते हैं और इतना आजू बाजू स्टार दिखता है उनको ना, कि जिस दिन उनको यूनिफॉर्म उतारना पड़ता है तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वी वर डूइंग अ सदर्न कैंपेन, तो वहां पर हम लोग एक CISF का प्रोग्राम कर रहे थे नागरकोइल में, एंड इट वाज एन ISRO प्लांट मैनेज्ड बाय CISF। तो जब हम थे तो हमने उनसे कहा कि भाई आप लोग ना बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, क्योंकि 1-1.5 साल में जो बच्चे जो चैलेंज का अनुभव किए वो शायद हमने और आपने जीवन में नहीं किया। तो सबने कहा सर क्या करना है? मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे पर गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना। तो सबने कहा सर हम सोचेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा बाय द वे आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करते? वो हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक जवान ने बड़े कॉन्फिडेंटली हाथ उठाया, और इतना कॉन्फिडेंटली उन्हें हाथ उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आर यू श्योर कि आपने बच्चे पर गुस्सा नहीं किया अभी तक? बोला नहीं सर। मैंने कहा सच्ची बता रहे हो? बोला हाँ सर, मैंने अभी तक बच्चे पर गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा आपके ना बच्चे के मम्मा को मैं भी फोन करूंगा एंड आई गेट इट वेरीफाइड। बोला सर आप हमारी वाइफ को फोन कर लीजिएगा सर, मैंने बच्चे पर कभी गुस्सा नहीं किया। तो मैंने सभी जवान से, जो उनके दोस्त और सभी लोग बैठे थे, मैंने कहा इनके लिए जोर से तालियां बजाइए। सभी ने तालियां बजाई। फिर मैंने कहा आर यू श्योर माय डियर फ्रेंड, आपने बच्चे पर कभी गुस्सा नहीं किया? बोले सर कब से मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया है। मैंने कहा अच्छा बताइए बाय द वे आपके बच्चे कितने साल के हैं? तो जवान पता क्या कहता है? सर 8 महीने की छोटी सी बच्ची है सर। और उसमें तो 6 महीना तो वो तो नागरकोइल में पड़ा हुआ है। मैं कहा खड़े हो जाइए। खड़े हो गए। मैं कहा 8 महीने की बच्ची पर आज तक गुस्सा नहीं किया? बोला नहीं सर। मैंने कहा 8 साल तक गुस्सा करोगे? नो सर। 18 साल तक गुस्सा करोगे? नो सर। 28 साल तक गुस्सा करोगे? नो सर। एंड आई केप्ट ऑन टेकिंग ऑन ऑल द पीपल, मैंने कहा सभी लोग करो। एंड वी टुक टू द गर्ल्स एज ऑफ 108 years। बच्चों पर गुस्सा नहीं करना। लेट्स प्ले द रोल of a mother, of a father. Swami Bhai should play the role of a teacher. The real consciousness is peace, love, joy, and happiness. Okay? तो thank you very much for this beautiful, wonderful interaction. मैं आपको एक गीत बजाता हूँ। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार बजाया था कि नहीं, बट आप ये गीत को सुनना एंड लेट्स है ना कनेक्ट ourselves to our inner nature of peace, love and happiness. और जितना हमारा इनर अंदर की प्रकृति सुंदर होने लगती है ना, आपका घर का वास्तु हीलिंग होने लगता है, और आपके घर के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से इतना अच्छा फील करते हैं। मुझे याद आता है जब मैं बचपन में था तो हमने माता पिता के साथ एक फिल्म देखने के लिए गए थे। मुझे उसका वो किसने प्ले किया और क्या कहानी है मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन वो फिल्म का नाम बहुत अच्छी तरह से याद है। वो फिल्म का नाम था घर एक मंदिर। दिस वाज द नेम ऑफ दैट मूवी, राइट? तो घर मंदिर या घर एक होली प्लेस कब बनता है ना? जब उस घर में रहने वाले दिव्य गुणों के साथ रहने वाले होते हैं, राइट? हमारे अंदर जितनी दिव्यता आती है, और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बिकॉज वी स्टार्टेड विथ नॉलेज, आई विल वाइंड अप विथ नॉलेज। तो स्वामी विवेकानंद ने नॉलेज के लिए कहा था, नॉलेज इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेल्फ। ज्ञान का अर्थ होता है जो हमारे अंदर रूहानियत, हमारे अंदर जो दिव्यता होती है, हमारे अंदर जो प्योर पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका मैनिफेस्टेशन नजर आना चाहिए। आई विल प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू। तो 2 होमवर्क मैंने दिया था। पहला होमवर्क, इस आधे घंटे में स्वामी भाई में कहीं पर भी नजर आई, मैंने बहुत कोशिश किया, फिर भी सटल है वो, समझ में नहीं आता है, तो माई ईमेल आईडी मैं जरूर दे देता हूँ। माई ईमेल आईडी इज evswami@gmail.com। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EV स्वामी? अब उनको केरला का वो भाषा बताऊंगा तो उनको प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने कहा E फॉर एलिफेंट,
V for victory, SWAMI for India @gmail.com. Can anyone put it on the chat? E for elephant, V for victory, SWAMI for India @gmail.com. एक छोड़ने का सर, ये एलिफेंट और विक्ट्री इतना अच्छा नहीं लग रहा सर. कैन वी पुट अप अ बेटर इमेज फॉर यू? मैंने कहा बोलो बोलो. बोला सर, E for egoless, V for viceless, then only sir you can become a real Swami. भले मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ. I'm born in South India. My name is Swaminathan. So you're most welcome to guide me. दूसरा जो होमवर्क जो संगीता बहन ने कहा, इसलिए मैंने आप तक दिया. We will check ourselves. हम रोल के साथ रियल कॉन्शियसनेस प्ले होते हुए, डोंट गेट इरिटेटेड. बिल्कुल इरिटेटेड नहीं होना, बिल्कुल हर्ट नहीं होना. मैंने बच्चे को बोला और वो मानता नहीं है. और प्लीज वो एंगर तो हमारे चेहरे में रिफ्लेक्ट होने ही नहीं चाहिए. थैंक यू. ओम शांति. जय हिंद. With your permission, can I play that song for a couple of minutes? Yes, sir, sure. Okay, so sweet of you. मुझे ये गीत बहुत बहुत अच्छा लगता है. पुराना एक हिंदी फिल्म का सॉन्ग है, किशोर दादा का सॉन्ग है, लेकिन इन अ न्यू वर्जन. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे. चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे. चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे. कहीं धूप खिले, कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले. जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले. आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले. जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले. एक ऐसे गगन के तले. Om Shanti. Have a very wonderful, beautiful day today. Thank you very much, sir, for all the topic overview, and Deepika ma'am for ever motivating us. Looking at the smiles here, I see the session was really great. And it was actually. And we definitely promise you, sir, that we will definitely bring the changes as we grow. Thank you, everybody, for listening the session so carefully and getting motivated. Om Shanti. Om Shanti.